Hello students, today we will continue the discussion of our first unit, that is the networking, and today we will discuss some more interesting topics. So just we are going to start. Okay, so the first in the first page, which the subtopics which we will discuss are like information retrieval, email, using search engines, FTP protocol, remote login, and file transfer protocols. So these are very interesting topics. Although the networking is completely interesting topic, but these are the most interesting topics of the networking section. Why these are known as the most interesting means this is my personal opinion that these topics are most interesting because here we can see everything practically. अभी तक आपने लैंड के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा which we cannot see practically, but here we can do the practicals. Means information retrieval, we can perform this operation, we can perform this practical by ourselves. Email we are using search engines and FTP protocols also, we can see how it works. So that's why these are the most interesting topics for me as well. Now we will start from the information retrieval. So information retrieve matlab to get back मीन्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. अगर हम इंटरनेट से कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं, दैट इज नोन एज द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. एंड हाउ इज इट पॉसिबल टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट? So first of all we have to perform a net surfing, or sometimes it is known as the browsing. So net surfing means exploring the websites. आप वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, दैट इज नोन एज द एक्सप्लोरिंग द वेबसाइट्स. एंड दिस इज the process of accessing website, process of net surfing is also known as process of browsing is also known as net surfing. तो net surfing से हमें information मिलती है, whatever written on the web pages we can read. So we get the information with the help of net surfing. So this is known as information retrieval. Now downloading, making the copy of requested web page or file or document on your local machine, on your local computer. जैसे आपने किसी फाइल के लिए, आपको कोई फाइल चाहिए था, मीन्स दैट फाइल इज फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड यू वांटेड टू रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन. सो फॉर दैट यू आर गोइंग on the internet, means for that you are accessing internet, you are net surfing. And if you are getting that file, अगर आपको फाइल मिलती है, then what you will do, you will just download that file because you were searching for that file. So downloading means making a local copy of that particular file, document, anything, whatever you are getting from the internet. If you are making a copy into your computer, that is known as the downloading. And if you are uploading any files from your computer, means if you are sending any file or any information from your computer to any website, that is known as the uploading. Now the browser, this is the most important thing which is required for the net surfing and downloading as well. A program or application software that lets you visit different websites on the net. मतलब अगर आपको नेट सर्फिंग करनी है तो you must have browsers. For example, nowadays we use Google Chrome's, Internet Explorer, Mozilla Firefox. So this is the information retrieval. मतलब हमको कोई भी information अगर हम इंटरनेट से लेते हैं in the form of net surfing only, or either in the form of downloading, तो that is your net surfing. That is your information retrieval. Next thing is the email. So email stands for the electronic mail. It is most widely used tool to send messages electronically. मतलब इसमें हम किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, कहीं से भी मैसेज आएगा तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं. Everything is possible with the help of electronic devices and internet. That's why it is known as the electronic mail. Now mail server, the computers which are responsible are which are directed to processing and directing emails, they are known as the mail servers. For example, अगर आपको कोई मेल भेजता है तो सबसे पहले वो मेल आपके मेल सर्वर पे आता है, then mail server receives that mail, and after checking your address,
इट डायरेक्ट्स टुवर्ड्स योर डायरेक्टरी। मेल जैसे आपका एक मेल आईडी है abc@gmail.com, तो अगर कोई भी आपको मेल भेजता है, दैट मेल विल गो टू द जीमेल सर्वर, गूगल सर्वर, जीमेल के पास जाएगा। देन जीमेल विल चेक कि ये किसके लिए आया, क्योंकि जीमेल के सर्वर पे सिर्फ आपका ईमेल आईडी नहीं है, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईमेल आईडीज आर देयर। तो जीमेल क्या करेगा, आपके एड्रेस को देखते हुए उस ईमेल को आपके पर्टिकुलर फोल्डर में डायरेक्ट कर देगा, सो दैट व्हेन यू विल लॉग इन यू कैन गेट दैट मेल। आपने कभी ऐसा हुआ कि आप लॉग इन करने के बाद वेट कर रहे हो, फिर आपको मेल्स आए? नो, आपको जितने मेल भेजे जा चुके हैं, द मोमेंट यू लॉग इन ऑल द मेल्स आर अवेलेबल फॉर यू। और अगर उस टाइम भी कोई मेल भेजता है तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दैट मेल इज अवेलेबल इन योर इनबॉक्स। ओके, सो सम एडवांटेजेस ऑफ ईमेल एंड सम लिमिटेशंस आर आल्सो। सो एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट, आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता, जैसे आपको फ़ोन कॉल में बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता, आप कुरियर करो आपको ज़्यादा खर्चा आएगा। बट मेल सर्वर में आपको मेल करने में लो कॉस्ट है, स्पीडी मटेरियल है ये, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपने यहाँ पे क्लिक किया एंड राउंड द ग्लोब आपका मैसेज पहुँच जाएगा। इट इज़ हेल्पफुल फॉर द वेस्ट रिडक्शन। आप पेपर कम्युनिकेशन करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप जितने ज़्यादा लिखते हैं उतना ज़्यादा पेपर आपको स्टोर करके रखना पड़ता है, और आफ्टर सम टाइम दैट पेपर इज ऑल्सो लाइक द वेस्ट। सो यहाँ पे आपको क्या, और कई बार क्या होता है, आप जब कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप जब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ गलती, कुछ मिस्टेक्स आ जाए, देन दैट पेज इज वर्स, दैट पेज इज यूजलेस, आप उस पेज को बर्बाद कर देते हैं, वो पेज वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे जब आप ईमेल लिखते हैं, इफ देयर इज एनी एरर जस्ट यू कैन करेक्ट, बिकॉज दिस इज अवेलेबल डिजिटली, ये आपके सिस्टम पे अवेलेबल है, तो आपको क्या है, आपके पेजेस वेस्ट नहीं हो रहे। सो इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस द वेस्ट, ईज ऑफ यूज, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, आपने जिस किसी को भी मेल भेजा है, जहाँ से भी आपको मेल्स आए, दैट ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द सर्वर एज वेल। आपके मेल बॉक्स में तो है ही, वो सर्वर पे भी है। मीन्स आपको जरूरत नहीं कि आप अपने सिस्टम पे उसकी मेल एक कॉपी डाउनलोड करके रखो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द गो। आप लॉग इन कीजिए अपने अकाउंट पे एंड दैट डिटेल इज अवेलेबल। तो रिकॉर्ड मेंटेन करना भी काफ़ी आसान है, बट देर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो, बिकॉज एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। सो लिमिटेशंस, द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, अगर आपको ईमेल यूज़ करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट अप द मेल सर्वर्स। आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन में या तो मेल सर्वर सेटअप करना पड़ेगा, या फिर आपको एक प्रोफेशनल ईमेल परचेज करना पड़ेगा। सो एनीथिंग यू हैव टू इन्वेस्ट, आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होगी, you have to invest some money as well. Okay, impermanent, this is not permanent, later जो आपको मिल जाता है, that later you can keep, but this mail is not with you each and every time आपको इंटरनेट पे डिपेंड रहना है। जो पेपर आपके हाथ में है, आप इंटरनेट पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप जब चाहे तब उसे एक्सेस कर सकते हो, बट यहाँ पे आप उसको एक्सेस करने के लिए यू हैव टू वेट, यू आर डिपेंडेंट अपॉन, ओके, अ हैस्टी मीडियम मीन्स अगर आपने कंप्लीटली डिसाइड नहीं किया और कुछ भी प्रॉब्लम है और आपने गलती से सेंड का बटन दबा दिया, देन इट विल नॉट लेट यू थिंक, आपने बटन दबाया नहीं सेंड का, द मैसेज डिलीवर टू द डेस्टिनेशन। सो before giving the send command, think think कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, because after pressing the send button it is not in your controls, it is hard to convey the emotions. The emails are helpful to convey the texts, they will not convey your emotions. आप क्या सोच रहे हो, what is your emotions, you cannot convey with the help of words. जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा बहुत सारा कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ आवर फेशियल एक्सप्रेशन हो जाता है, मीन्स हम अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर पाते हैं। बट व्हेन वी गो फॉर द रिटन कम्युनिकेशन का बिगेस्ट ड्रॉबैक है कि वहाँ पे आप अपने इमोशंस को कन्वे नहीं कर सकते, व्हाट यू आर फीलिंग, या फिर आप उस लेटर को लिखते टाइम क्या फील कर रहे थे, ये रीडर को गेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, सो दिस वाज द ईमेल। नाउ द ईमेल एड्रेस, जब भी हम ईमेल एड्रेस की बात करते हैं तो ईमेल एड्रेस is available in the format of username at the rate domain name. Username at the rate domain name. For example, testuser@bestserver.com.
दूसरा ईमेल एड्रेस हम देख सकते हैं abc@gmail.com, ओके, guest@yahoomail.co.in। तो एट द रेट सिंबल के पहले जो पार्ट होता है दैट इज योर यूजर नेम, एंड आफ्टर एट द रेट पार्ट दैट इज द नेम ऑफ द नेटवर्क, दैट इज डोमेन नेम। ओके, सो ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, इट इज MUA ऑल्सो मीन्स मेल यूजर एजेंट। ईमेल क्लाइंट, हमने ईमेल सर्वर की बात पढ़ी थी। ईमेल सर्वर क्या, इसका काम है आपके मेल्स को रिसीव करना और रीडायरेक्ट करना, प्रोसेस करना एंड डायरेक्ट करना। सो ईमेल क्लाइंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ताकि हम ईमेल सर्वर से कम्युनिकेट कर सकें, हम उस ईमेल सर्वर से कम्युनिकेट कर सकें एंड अपने ईमेल्स को एक्सेस कर सकें। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, मोजिला थंडरबर्ड, पोस्टबॉक्स एक्सप्रेस एटसेट्रा, देयर आर मल्टीपल ईमेल क्लाइंट्स सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। हमें जिसमें कंफर्टेबिलिटी आती है, जो हमें ठीक लगता है, वो यूज़ करते हैं। इट डिपेंड्स, ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ही सबसे बेस्ट है, इसके अलावा हम कुछ नहीं यूज़ कर सकते। टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, सो इट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स एंड योर बजट। VoIP, ये टर्म हमने कई बार सुना होगा आप सबने। VoIP मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनिशियली हम इंटरनेट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते थे। The credit goes to the VoIP protocol. It enables the society to make calls with the help of internet. अगर हम इंटरनेट के थ्रू कॉल करते हैं तो दैट इज द क्रेडिट, दैट इज द यूज ऑफ VoIP प्रोटोकॉल। साइन अप, साइन इन, ये दो टर्म्स हैं जब भी हम ईमेल को यूज करना होता है। मीन्स अब जैसे अभी हमने ईमेल के बारे में पढ़ा, सो वेयर वी कैन यूज द ईमेल्स, हम ईमेल क्लाइंट्स तो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, बट क्या हमारे सिस्टम पे ही सब कुछ है? नो, फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट अवर ईमेल अकाउंट अपने ईमेल सर्वर पे। जो वेबसाइट्स हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वी कैन क्रिएट अवर अकाउंट देयर। और अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं, दैट इज नोन एज द साइन अप प्रोसेस, साइन अप और रजिस्ट्रेशन। So the sign up process, it helps you to create email account on the mail server. जब आप मेल सर्वर पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, that process is known as the sign up process. Now अब हम उस मेल को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, we sign in, we just simply sign in. कुछ वेबसाइट्स पे आपको ये ऑप्शन लॉग इन की तरह मिलता है, वहाँ पे लिखा होता है लॉग इन। ओके, सो दिस प्रोसेस, द प्रोसेस टू लॉग इन इनटू ईमेल अकाउंट टू एक्सेस ईमेल सर्वर्स। नॉट ओनली ईमेल सर्वर्स, आपकी जो भी ईमेल्स आए हैं आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यू कैन रीड योर मेल्स, यू कैन क्रिएट द मेल्स, यू कैन सेंड द मेल, यू कैन फॉरवर्ड द मेल्स। ठीक है, इनबॉक्स, सो इट इज द नेम ऑफ द फोल्डर दैट स्टोर्स योर रिसीव्ड मेल्स। जैसे आपने मेल सर्वर पर अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद यानी उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, साइन अप प्रोसेस। आफ्टर साइनिंग अप यू विल साइन इन, मीन्स यू विल लॉग इन, आप उस पर लॉग इन करेंगे। फिर आपको सबसे पहले जो फोल्डर मिलता है दैट इज द इनबॉक्स। बाय डिफॉल्ट वो फोल्डर आपको मिलता है और यहाँ पे ही आपके सारे मेल्स आपको दिखाई देते हैं। ओके, सो द प्लेन टेक्स्ट ईमेल, ईमेल की भी दो फॉर्मेट्स हैं। जब भी हम ईमेल में कोई मैसेज लिखते हैं तो इनिशियली सिर्फ प्लेन टेक्स्ट ईमेल अवेलेबल था। प्लेन टेक्स्ट ईमेल मीन्स वहाँ पे हम मेल्स को फॉर्मेट नहीं कर पाते थे, एक सिंपल जो फॉन्ट वो आपका मेल क्लाइंट सपोर्ट करता था हम उसे ही यूज़ कर सकते थे। अगर हमें कोई पिक्चर या फिर कुछ ग्राफिक्स को इंसर्ट करना तो हम उसमें इंसर्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते थे, मतलब हमारे पिक्चर के बीच में हम उस फोटोज़ को इंसर्ट नहीं कर सकते थे, बट दैट वाज पॉसिबल टू सेंड दैट पिक्चर्स एज अटैचमेंट्स। बट जब हम रिच टेक्स्ट ईमेल की बात करते हैं यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो इट सपोर्ट्स फॉर्मेटिंग। हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। फिर ईच एंड एवरी ऑप्शन जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हमको मिलता है, वो सारे सॉफ्टवेयर, सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पे मिलते हैं। एंड वी कैन इंसर्ट द पिक्चर्स ऑफ द ग्राफिक्स एज वेल। हम चाहे तो अटैचमेंट में भेज सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि अपने मैसेज के बीच में, मतलब टेक्स्ट मैसेज के बीच में हम किसी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रिच टेक्स्ट ईमेल। ओके, सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल मैसेज। जब भी हमें एक ईमेल हमें कोई मिलता है तो वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, अगर हम देखें तो वहाँ पे सबसे पहले एक हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट इज द फ्रॉम। फ्रॉम सेक्शन में क्या होता है, दैट इज द एड्रेस ऑफ द सेंडर। जिसने भी वो मेल आपको किया है वहाँ पे उसका एड्रेस होता है। ओके, सपोज मिस्टर ए ने अगर मिस्टर बी को मेल किया और मिस्टर बी अपना मेल अपना ईमेल पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अगर वो फ्रॉम सेक्शन देखते हैं
तो वहाँ पे फ्रॉम सेक्शन में उनको क्या दिखाई देगा? वहाँ पे फ्रॉम सेक्शन में उनको मिस्टर ए का एड्रेस दिखाई देगा। क्यों? बिकॉज मिस्टर ए ने ही वो मेल उनको किया है। ठीक है। नाउ द टू सेक्शन, एड्रेस टू विच द मेल इज सेंट। ओके। नाउ सीसी, ये एक टर्म है जो हम देखते हैं बट जनरली हम यूज नहीं करते। तो सीसी स्टैंड्स फॉर द कार्बन कॉपी। अगर आप कार्बन कॉपी में सीसी में वेरियस ईमेल एड्रेसेस को टाइप करते हैं, इट इज़ पॉसिबल आप एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेस पे भी मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है। आपका जीमेल 500 मेल्स को सपोर्ट करता है। हमारे जीमेल में पॉसिबल है कि हम एक बार में 500 लोगों को मेल भेज सकते हैं। अगर अभी जीमेल ने अपनी कैपेसिटी इन्हांस कर दी, सो आई ऑल्सो हैव टू अपडेट माई सेल्फ, बट अभी तक जब तक मैंने यूज़ किया था तो 500 मेल्स हम एक बार में भेज सकते थे। तो अगर आपने वो 500 मेल बॉक्स मेल एड्रेसेस सीसी में लिखे तो सबको मिल जाएगा, एंड उन 500 रेसिपिएंट्स को ये भी पता रहेगा कि उनके अलावा बाकी 499 किस मेल आईडीज पे ये मैसेज भेजा गया। दिस इज ट्रांसपेरेंट, दिस इज विजिबल टू ईच एंड एवरीवन। नाउ द बीसीसी, दिस इज द ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब यहाँ पे मेल की कॉपी तो जाएगी बट ये किसी को भी पता नहीं होगा कि ये मेल और किसे भेजा गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उस मेल को, सपोज आपके पास एक मेल है, आपने वो मेल लिखा, आपने टू में अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखा, किसी अपने बेस्ट फ्रेंड का, ओके, टू में एक एड्रेस लिखा, एंड देन आपने 499 एड्रेसेस बीसीसी में लिख दिए। देन व्हाट विल हैपन? तो जितने भी रिसिपिएंट्स जिनके ईमेल एड्रेसेस आपने बीसीसी में लिखे हैं, उन्हें ये मेल तो जरूर रिसीव होगा, बट उन्हें बाकी के 498 एड्रेसेस के बारे में पता नहीं चलेगा। उन्हें लगेगा ये मैसेज सिर्फ टू में जिसे आपने भेजा है उन्हें और आपको भेजा है। ओके। बीसीसी में क्या होता है कि जितने भी रिसिपिएंट्स को भी मैसेज भेजते हैं, मैसेज ज़्यादा ज़रूर है बट किसी को भी दूसरे का ईमेल एड्रेस विजिबल नहीं होता एक्सेप्ट टू एनसीसी। अगर आप उस मेल को टू एनसीसी पे भी फॉरवर्ड करते हैं, साथ ही साथ आप बीसीसी में, तो बीसीसी में जितने भी मेल एड्रेसेस हैं वो हिडन रहते हैं। ओके। नाउ द सब्जेक्ट, दिस इज द शॉर्ट टाइटल फॉर द मेल। जनरली ये ऐसा होना चाहिए जो खुद से ही उस मैसेज को एक्सप्लेन कर सके कि ये मैसेज किस बारे में है। जनरली सब्जेक्ट का मतलब ऐसा ही होता है। अटैच बॉडी मीन्स द कंप्लीट मैसेज, द मैसेज जो आपको लिखना है, जो आपको भेजना है। अटैचमेंट, एनीथिंग, पिक्चर, डॉक्यूमेंट, सॉन्ग्स, वीडियोज, वट एवर, एनी डॉक्यूमेंट विच यू विश टू शेयर, दैट इज नोन एज अटैचमेंट। आप उसको अटैचमेंट के फॉर्म में सेंड कर पाते हैं। डेट एंड टाइम ऑन विच द मैसेज वॉज सेंट। message id, this is very important but this is not visible to us, this is not accessible to us means ना तो आपके रिसीवर को दिखाई देगा ना तो आपके सेंडर को दिखाई देगा। इट इज़ यूनिक फॉर एवरी ईमेल मैसेज बट नॉट विजिबल टू अस। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये इम्पॉर्टेंट भी है, यूनिक भी है सारे मैसेज के लिए, फिर हमें दिखता क्यों नहीं है? दिस इज़ फॉर द सर्वर्स। जब आप मेल करते हैं तो वो मेल सर्वर कैसे पहचानेगा कि आपने किस ईमेल को जवाब दिया, आपने किस ईमेल का रिप्लाई भेजा? तो फॉर दैट पर्पज मैसेज आईडी इज जनरेटेड। जब आप उस मैसेज को रिप्लाई करते हैं या उस मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो दैट मैसेज आईडी इज यूज्ड एज द रेफरेंस। ओके। नाउ स्पैम, हम ईमेल की बात कर रहे हैं तो ईमेल में ये टर्म भी हमें मिलेगा देखने को, स्पैम। स्पैम मीन्स irrelevant or inappropriate messages sent on internet to a large number of people। मतलब एक साथ न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ यूजर्स को, इंडिविजुअल्स को अगर आप वो मेल भेजते हैं, दैट मेल इज नोन एज द स्पैम। ओके। और द फुल फॉर्म ऑफ स्पैम इज सेंड पीपल अ लॉट ऑफ मेल। मतलब लोगों को ढेर सारे मेल्स एक साथ भेजिए। अब ये क्यों भेजा जाता है? मार्केटिंग पर्पज हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, एनीथिंग। किस इंटेंशन के साथ भेजा जाता है डिपेंड करता है। देन जंक मेल, this is also unwanted or unsolicited advertising or promotional materials। Next time spam messages and junk mails are used interchangeably। मतलब spam ही junk है, junk ही spam है, कुछ ऐसा।
दोनों के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ नहीं है, दोनों बहुत आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो कहीं कहीं पे आपको स्पैम और जंक एक ही टर्म यूज़ किया हुआ मिलेगा। नाउअडे मैक्सिमम मेल क्लाइंट्स जो हमारे मेल सर्वर्स हैं वो हमें सिर्फ स्पैम या जंक के नाम से ही शो करते हैं। ओके, सर्च इंजन। सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम that searches through a database of web page for particular information। जब भी हम इंटरनेट पर कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं तो हम अपना एक टेक्स्ट लिखते हैं, मीन्स दैट टेक्स्ट इज नोन एज द कीवर्ड, एंड सर्च इंजन यूजेस दैट कीवर्ड टू हेल्प अस टू फाइंड इंफॉर्मेशन। तो सर्च इंजन का काम क्या होता है? अ प्रोग्राम दैट सर्चेस थ्रू अ डेटाबेस फॉर वेब पेजेस फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ओके, अब देखते हैं कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेरी लिख देते हैं, कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, कीवर्ड लिख के हम इंटर प्रेस कर देते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट वी नेवर थिंक कि हाउ दिस सर्च इंजन इज वर्किंग। तो 3 स्टेप्स हैं सर्च इंजन के जो हमारे सर्च करने से पहले ही वो परफॉर्म करता है। ये जो स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स हैं वो हमारा सर्च इंजन हमारे सर्च स्टार्ट करने से पहले ही कर चुका होता है। थर्ड स्टेप भी प्री डिसाइडेड होता है, हम सिर्फ उसको यूज करते हैं। अब कैसे देखते हैं। स्पाइडर्स और वेब क्राउलर और बोट्स और वेब रोबोट्स और एजेंट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आपको सुनने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर के प्रोडक्ट्स का नाम डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब ये करते क्या है? दे परफॉर्म मेथोडिकल सर्चेस needed to find information. They crawl from one server to another, compiling the huge list of URLs। मतलब जब हम सर्च नहीं कर रहे होते हैं तब भी ये जितने भी सर्वर्स अवेलेबल हैं उनको क्रॉल करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं, और वहाँ पे अवेलेबल यूआरएल्स को, रिसोर्सेज को जो अलाउड है, मीन्स जो फ्री है या फिर जो एक्सेसिबल है, उनको क्रॉल करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं, उनका इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके ले आते हैं। देन सेकेंड स्टेप, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसेस। तो हमारे सर्च इंजन्स पे इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? The indexing softwares extract information from the crawled documents and web addresses, prepares an index of it and stores in a database। वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन, जो हमारे क्राउलर्स, जो हमारे स्पाइडर्स हैं, वेब क्राउलर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, हमारा इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है? उनका इंडेक्स क्रिएट करता है। इंडेक्स क्रिएट करने के बाद हमारे डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है। एंड देन सर्च एल्गोरिदम्स। सर्च एल्गोरिदम्स क्या है? दे आर द मेथड्स यूज्ड टू परफॉर्म सर्च इन डेटाबेस प्रोवाइडेड बाय द कीवर्ड्स। ये सारा इन्फॉर्मेशन क्राउलर्स ले आए, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर ने उनको इंडेक्स किया और डेटाबेस में स्टोर कर दिया। अब इस डेटाबेस में से इन्फॉर्मेशन किस तरीके से रिट्रीव की जाएगी, दिस इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ सर्च एल्गोरिदम्स। यानी उस सर्च इंजन को इन 3 स्टेप्स में प्रोग्राम कर दिया जाता है, तब जाके हम वहाँ से डेटा एक्सेस कर पाते हैं, हम डेटा को सर्च कर पाते हैं। ओके, अब जब हम कोई भी कीवर्ड इंटर करते हैं तो वो कीवर्ड क्या होता है? सबसे पहले हमारा सर्वर, हमारा सर्च इंजन अपने डेटाबेस में चेक करता है। इफ़ दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देयर, वो हमें तुरंत मिल जाता, और अगर नहीं है देन इट सर्च फॉर द अनदर डेटाबेस ऑल्सो। बट मैक्स टाइम सारे इन्फॉर्मेशन हमारे एक्सेस करने से पहले ही डेटाबेस में स्टोर्ड रहती है एंड वी get the information easily। See, this is the picture given in your book also। The first step is the crawling, different database से information को collect करके एक जगह ले आना, then indexing software उसको index करके database में store करता है, and now the delivery means search algorithms decides कि how data will be delivered। Okay, the file transfer protocol, FTP। File transfer protocol, it is used for exchanging files over any network that supports TCP/IP protocol। TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में आपने पढ़ा ही है। TCP/IP, द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल, मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट। हम कहीं भी कम्युनिकेशन सप्लाईज करते हैं तो TCP/IP ही यूज़ किया जाता है। तो जो नेटवर्क TCP/IP सपोर्ट करता है उस नेटवर्क पे हम FTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं फॉर व्हाट? फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स। अब हमको फाइल ट्रांसफर करने के लिए व्हाट वी नीड? वी नीड FTP सर्वर एंड FTP क्लाइंट।
FTP सर्वर जो हमारे FTP रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, मीन्स रिक्वेस्ट को सुनेंगे और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का काम क्या है, हमारे FTP सर्वर्स का, FTP क्लाइंट्स जो हमें हेल्प करेंगे उस FTP सर्वर से कनेक्ट होने में। ओके, सो डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम रिमोट साइट्स, FTP का मैक्स टाइम हम यूज़ यहीं पे करते हैं। अगर हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी हो या फिर कोई फाइल अपलोड करनी हो किसी सर्वर पे, रिमोट साइट पे, देन वी यूज FTP मैक्स टाइम्स। रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, if we wish to access a computer that is available on the remote computer means remote login means a computer that is not directly accessible to you, वो कंप्यूटर डायरेक्टली आपके सामने नहीं है, दैट इज नॉट योर लोकल मशीन, बट इफ यू आर log means if you are making login on that system with the help of internet, that is known as remote login. Okay, and file transfer protocols. So the telnet is, this is the utility, this is the oldest internet utility that lets you log onto remote computer system. और सिर्फ लॉगिन की फैसिलिटी नहीं देता है, आप उस लॉगिन के बाद उस सिस्टम पे ऐसे वर्क कर सकते हैं जैसे वो सिस्टम आपके सामने लोकली कनेक्टेड हो, सो यू कैन यूज इट नॉर्मली. So this is the most popular, most effective utility available on the internet. SSH, this is the secure cell protocol. Secure cell protocol is remote logging protocol that logs into remote machines via a cell where all data between the clients and server is encrypted. जैसा कि नाम में आपने देखा कि सिक्योर सेल प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है सर्वर से रिसीवर के बीच में, मतलब क्लाइंट से सर्वर के बीच में, दैट इज इन इनक्रिप्टेड फॉर्म्स. टेलनेट में आपकी इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड नहीं होती, जब आप मेल यूज़ करते हैं तो इनक्रिप्टेड नहीं होती, बट नाउअडे मैक्सिमम मेल्स आर इनक्रिप्टेड. इवन आवर जीमेल सर्वर यूजेस 256-bit encryption. Okay, SCP, this is the secure copy. It allows you to transmit files from one machine to another over internet with encryption benefits of SSH. यानी SSH को यूज करके अगर किसी फाइल को हम सिक्योरली कॉपी कर पाते हैं, दैट इज नोन एज SCP. ये हमें अलाउ करता है, ये हमें फैसिलिटेट करता है, हम एक मशीन से दूसरे मशीन पे या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा सिक्योरली ट्रांसफर कर सकें विथ encryption benefits of SSH means secure cell. SFTP, this is the secure version of file transfer protocol. यानी FTP भी हमारा सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं होता, वहाँ पे भी डेटा हमारा एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं जाता, बट इफ़ वी वांटेड टू सिक्योर द डेटा, अगर हम कोई फाइल शेयर कर रहे हैं और हम चाहते हैं ये सिक्योर हो, देन वी हैव द ऑप्शन टू यूज द SFTP. वेब services or applications available via web through the use of specific protocols. मतलब जो भी सर्विसेज या एप्लीकेशंस हमें इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, दैट इज नोन एज द वेब सर्विसेज. मतलब अगर हमें टिकट बुक करने का कोई सॉफ्टवेयर, कोई वेबसाइट मिलती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्विस. हमें मूवी का टिकट बुक करने का ऑप्शन मिलता है, हम अगर ऑनलाइन गेम खेल पाते हैं, एनीथिंग विच वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कोई भी सर्विस अगर हमें इंटरनेट के थ्रू मिलती है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्विस. फॉर एग्जाम्पल chatting services, email services, video conferencing services, social networking services, etc. Chatting, what is chatting? Online textual talk is known as the chatting. मतलब when we talk using internets, using online interface, हमें ऐसा लगता है कि हम रियल टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं. रियल टाइम कम्युनिकेशन मीन्स जब आप मैसेज भेजते हैं तो जिसे आप मैसेज भेज रहे हैं वो भी ऑनलाइन होने चाहिए, तभी आप ऑनलाइन चैट कर पाते हैं, तभी आप चैटिंग कर पाते हैं. तो मैसेज आप भेजेंगे, इंस्टेंटली आपको रिप्लाईज मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि आप दोनों रियल टाइम में कम्युनिकेट कर रहे हैं. दिस इज द चैटिंग. इनिशियली चैटिंग में क्या होता था, सिर्फ आप टेक्स्ट शेयर कर सकते थे, बट नाउ अ डे वी हैव ईच एंड एवरीथिंग. हम मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं चैटिंग में, हम वीडियोज़ भेज सकते हैं, MP3 भेज सकते हैं, हम इमोजीज भेज सकते हैं. ओके, आपका जो व्हाट्सएप है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ चैटिंग प्लेटफॉर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पे क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन शेयर. द चैट रूम्स, इनिशियली जब हम चैट करते थे तो वहाँ पे चैट रूम्स होते थे. तो चैट रूम्स क्या होते थे, दे आर द वेबसाइट्स और द पार्ट्स ऑफ सम ऑनलाइन सर्विस दैट प्रोवाइड्स एन ऑनलाइन वेन्यू फॉर communities of users with a common interest to communicate in real time.
इंस्टेंटली। भाई चैट रूम में जब भी आप चैट करते हैं तो आप अपने सेम इंटरेस्ट के लोगों से ही बात करते हैं, चाहे हम रियल लाइफ में बात करें या फिर इंटरनेट पे बात करें, हम अपने सेम इंटरेस्ट ग्रुप से ही बात करते हैं। तो चैट रूम वो होते हैं जहाँ पे सेम इंटरेस्ट के लोग एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, लोग हों या फिर कम्युनिटी हो जो एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज द चैट रूम्स। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंट मैसेजेस, इनको शॉर्ट में IMs कहा जाता है। ICQ, ICQ is the full form of this ICQ is ICQ, then IRC, internet relay chats, web-based chats. So these all are the examples of the different types of chatting. Now, video conferencing. This is also a service available using internet. So a two-way video phone conversation among multiple participants. जैसे हम टेलीफोन कॉल्स करते हैं तो टेलीफोन कॉल्स में क्या होता है, हम सिर्फ ऑडियो शेयर कर पाते हैं, हम एक दूसरे को देख नहीं पाते। देन हम टेलीफोन्स में भी कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, यानी अब हम 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं करते, हम 1-to-many कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मोर देन 1 people can communicate, means more than 2 people can communicate, that is known as a conference. Same way video conferencing means not only 2 people, more than 2 people will be connected same time to communicate, और वो भी रियल टाइम कम्युनिकेशन होगा। ऐसा नहीं कि आप अभी बोलेंगे फिर वो 10 मिनट बाद वहां से रिप्लाई आएगा, नो, आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन का फील होगा। द सिस्टम इज डिजाइन टू मेक यू फील दैट यू आर कम्युनिकेटिंग इन रियल टाइम। ओके, e-learning, this is also service available on internet. E-learning, e means electronic learning, refers to the learning that takes place in an electronically simulated environment. Means with the help of internet अगर आप सीख रहे हैं, that is known as the e-learning. तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो एडवांटेजेस क्या क्या है, आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग में पढ़ सकते हैं, व्हेन यू फील फ्री यू कैन मेक योर लर्निंग। इट इज़ द सेल्फ पेस्ड एंड सेल्फ टाइम लर्निंग, आपको जब टाइम मिलता है आप तब पढ़ सकते हैं, और आपकी जो स्पीड है आप उस स्पीड में पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, नाउ यू आर एट योर होम, तो आप अपनी स्पीड से, जो आपकी लर्निंग स्पीड है उस स्पीड से आप अपनी इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख के आप अपनी स्पीड के साथ लर्न कर सकते हो। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या आई विश कि आप भी थोड़ा सोचो। दिस इज अवेलेबल इन योर बुक, सो आई कैन मेक द नोट्स ऑफ दैट ऑल्सो, बट प्लीज गो फॉर स्टडीज। आप थोड़ा सा पढ़ें, ओके, आप वो पार्ट पढ़िए, देन वी विल डिस्कस ऑन द गूगल मीट। नाउ ई बैंकिंग, what is e-banking? Electronic banking, availing the banking services through electronic measures via internet is called e-banking. Okay, जब भी आप बैंकिंग सर्विसेज को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दैट इज नोन एज e-banking. What is e-shopping? Process of shopping done over the internet is called online shopping or e-shopping. मतलब अगर आप शॉपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दैट इज नोन एज ई शॉपिंग। अब शॉपिंग में क्या, बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन बी परचेज थ्रू द ऑनलाइन शॉपिंग। ऐसा नहीं है कि जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो हमें प्रोडक्ट ही मिलना चाहिए, हम सर्विसेज भी बेच सकते हैं, सर्विसेज भी खरीद सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ई शॉपिंग। ओके, नाउ ई रिजर्वेशन, व्हाट इज ई रिजर्वेशन? इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन, मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स और होटल रूम्स और टूरिस्ट पैकेजेस एटसेट्रा थ्रू इंटरनेट। मतलब अगर आप इंटरनेट की यूज़ करके कहीं की भी टिकट्स को बुक करते हैं, दैट इज नोन एज ई रिजर्वेशन। इवन अगर आप आगरा का ताजमहल भी देखना चाहें तो आप उसके टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। सवाई राजा मानसिंह का जो महल है, अगर आप उसको देखना चाहें उसकी भी टिकट्स आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ओके, सो ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, एंड इफ यू आर अवेलिंग दैट सर्विसेज विद हेल्प ऑफ इंटरनेट, अगर आप वाराणसी में आपके सारनाथ को घूमने जाएं तो वहाँ पे भी आप ई टिकट्स बुक कर सकते हैं। आप दिल्ली जाएं घूमने के लिए, वहाँ पे भी आप ई टिकट बुक कर सकते हैं, कुतुब मीनार देखना हो। सो ई रिजर्वेशन मीन्स मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स। वो टिकट्स आप होटल्स के लिए बुक करें, मूवी के लिए बुक करें, टूरिस्ट प्लेसेस के लिए बुक करें, बस के लिए बुक करें, दैट इज नोन एज ई रिजर्वेशन। नाउ ई गवर्नेंस refers to the application of electronic means in governance with an aim of fulfilling the requirements of common man
at affordable cost and in fastest possible time. मतलब गवर्नेंस को इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सहायता से हर कॉमन मैन तक पहुंचाना, दिस इज द ई गवर्नेंस। ओके, जैसे अभी आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना है, दैट इज द डोमिसाइल। आपने डोमिसाइल बनाया, वो सही है या नहीं सही है, यू कैन वेरीफाई ऑन द इंटरनेट, दिस इज ई गवर्नेंस। आप ऑनलाइन उसके लिए एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, दैट इज ई गवर्नेंस। आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है, दैट इज पॉसिबल ऑन, दैट इज पॉसिबल ऑनलाइन, दैट इज ऑल्सो ई गवर्नेंस। पहले अगर इंटरनेट पे ये सर्विसेज नहीं थी तो आपको इस काम के लिए ऑफिस जाना होता था, गवर्नमेंट ऑफिस जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए, सब कुछ कीजिए। नाउ ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर फिंगर स्टेप्स, आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दैट इज अवेलेबल। सो दिस इज ई गवर्नेंस। नाउ ई ग्रुप्स, e-groups refers to an online community where people discuss on topics of common interests, जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट के लोग बात करते हैं, दैट इज नोन एज अ ग्रुप। जैसे रियल लाइफ में भी अगर बात करें, क्लासरूम में आपके ग्रुप होते हैं, स्कूल्स में ग्रुप होते हैं, आपके घर में आपके ग्रुप होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका ग्रुप होता है, तो सेम इंटरेस्ट के लोग आपस में ग्रुप बनाते हैं। द सेम वे दे हैव द मीन्स, जो ऑनलाइन कम्युनिटी जो सेम इंटरेस्ट की होती है, दैट इज नोन एज द ग्रुप्स। Any message posted in such a discussion is known as a post, and all the posts are accessible to all the members of the group. आपने कुछ भी लिखा, कुछ भी पोस्ट किया, कोई भी मैसेज अगर आपने पोस्ट किया, दैट इज नोन एज द पोस्ट, और हर पोस्ट सारे यूजर्स को एक्सेसिबल होता है। सोशल नेटवर्किंग, व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग? सो यूज ऑफ इंटरनेट based social media program to make connections with friends, family, classmates, customers and clients. मतलब अगर आप इंटरनेट पे अवेलेबल किसी प्रोग्राम को हेल्प लेके, किसी प्रोग्राम का हेल्प लेके अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, क्लासमेट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, कस्टमर्स के साथ या फिर क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, या फिर इन सब के साथ कनेक्ट होते हैं, दैट इज नोन एज द सोशल नेटवर्किंग। मीन्स डिजिटल प्लेटफॉर्म की सहायता से अगर आप लोगों से कनेक्ट होते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, दैट इज नोन एज द सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग साइट, a website that provides a venue for people to share their activities with family, friend and colleagues, or to share their interest in a particular topic. मतलब जिस वेबसाइट के थ्रू आप सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज को अवेल करते हैं, दैट वेबसाइट इज नोन एज अ सोशल नेटवर्किंग साइट। एग्जाम्पल फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, these are the most common and most popular websites. Now the merits of social networking. Every coin has two faces, तो कुछ merits होंगे, कुछ demerits भी होंगे। So it is easier to connect with people. मीन्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, जस्ट लॉग इन एंड कनेक्ट, स्टार्ट। ईजी टू होल्ड डिस्कशंस एंड कलेक्ट ओपिनियंस, आप अपने ग्रुप में किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे, और सबका ओपिनियन भी कलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी में। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा प्रोग्रामर होने की ज़रूरत है, यू नीड नॉट टू नो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू जस्ट स्टार्ट यूजिंग द सर्विसेज एंड ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। इंटरेक्टिव इन्वॉल्वमेंट, आप कुछ भी लिखिए, जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं सब उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, सब अपना ओपिनियन दे सकते हैं, मीन्स इंटरेक्टिव इन्वॉल्वमेंट। आप भी किसी को जानते हैं, अगर उन्होंने कुछ लिखा, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, ब्रिंग मोर अवेयरनेस। नाउ डिमेरिट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीन्स एडवांटेजेस तो हम सब जानते हैं, डिसएडवांटेज पे हम बहुत कम बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ हम घर से जाने से पहले या किसी भी जगह पे जाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले, एक पैटर्न बन गया है, उसकी फोटो लीजिए, पोस्ट कीजिए। इज इट गुड? नो, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट एडवाइजेबल। व्हाई? मिसयूजिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन पोस्टेड बाय इनोसेंट यूजर्स। आप जो भी इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, आपने किस लिए पोस्ट किया, लोग उसका कैसे यूज कर सकते हैं, प्लीज थिंक अबाउट इट।
there are enormous way to misuse the information provided by you. Suppose आप घर से बाहर जा रहे हैं and you are posting on the Facebook that everyone is going here and there, हम सब यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं. What you are sharing that you are going for a quality time, but another message what you are giving that no one is at home. आपने साथ साथ ये मैसेज भी दिया कि no one is at home. This is a clear signal for the people of bad intention. They can do anything with with your home. So please think wisely before doing anything on internet, before doing anything on social networking sites. Credibility of information. जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, क्या वो सही है? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. हमें जो भी मिलता है हम उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं. दैट इज नॉट गुड. यू मस्ट वैलिडेट द इंफॉर्मेशन बिफोर assuming or presuming it is that to be correct. Fake profiles. आप जिनसे कम्युनिकेट करते हैं हो सकता है वो हो ही ना, बिकॉज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप किससे बात कर रहे हैं, जो नाम लिखा आपको तो वही लगता. सपोज अगर सामने वाले ने लिखा कि ही इज मिस्टर एबीसी, so whole life you will be assuming that he is Mr. ABC or she is Mr. ABC, Mr. or Miss ABC, but वो एक्चुअली कौन है यू नेवर नो. जैसे मैक्सिमम सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ करने की एक मिनिमम एज है. बिफोर मीन्स बिलो 18 यू कैन नॉट यूज. बट हु इज देयर टू मेक श्योर दैट यू आर रियली 18+? आप अपना अकाउंट बनाते समय अगर आप 10 ईयर्स के हैं, आप अपना अकाउंट बनाते समय अगर आप क्लिक करते हैं यस आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, हु इज देयर टू वेरीफाई? नो वन इज. तो एक्चुअली आप किससे बात कर रहे हैं? यू कैन, that is also a big question. So there are multiple fake profiles. Bullying and trolling. भाई आपने कोई इन्फॉर्मेशन पोस्ट की, कुछ लोग जो बैड इंटेंशन के हैं वो आपको बुल कर सकते हैं, वहाँ पे परेशान कर सकते हैं. दे कैन ट्रोल यू. आपके हर कमेंट पे उल्टे सीधे कमेंट्स कर सकते हैं, आपके हर पोस्ट पे आपको परेशान कर सकते हैं, हैरेस कर सकते हैं. पीयर प्रेशर. कई बार लोग ऐसे ग्रुप में जुड़ जाते हैं जहाँ पे अपने आप को, उन्हें एक दूसरी आइडेंटिटी प्रिटेंड करनी पड़ती है, जो वो नहीं होते उन्हें वो बन के दिखाना पड़ता है, जस्ट क्योंकि उन्हें उस सोसाइटी में रहना है, उन्हें उस ग्रुप में रहना, एग्जिस्ट करना, जो रियली में होते नहीं, बट पीयर प्रेशर के कारण वो ऐसा शो ऑफ करते हैं. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. बहुत सारे लोग इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स को रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ नहीं करते, वो इररिस्पॉन्सिबली यूज़ करते हैं. मीन्स जो चीज़ें सही नहीं हैं वो भी, जैसे कोई भी फेक न्यूज़, स्पैम मैसेजेस, कुछ भी पोस्ट कीजिए. देर इज़ नो वन टू वैलिडेट, देर इज़ नो वन टू वेरीफाई. अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर एंड एडिक्शंस. कई बार क्या होता है, आपको भी ये बीमारी लग सकती है. यस, दिस इज द बीमारी, दिस इज द इलनेस, कि लोग आपके पोस्ट्स को लाइक करें, अटेंशन आपको चाहिए. उसके लिए लोग उल्टे सीधे काम करते हैं. उल्टे सीधे काम मतलब छत के एकदम डेंजर साइड्स पे खड़े होकर सेल्फी लेके उसको पोस्ट करना. फॉर व्हाट? फॉर सीकिंग द, दिस इज द अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर एंड दिस इज ऑल्सो द एडिक्शन. सो दीज आर द डिमेरिट्स. और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग यू विल कम टू नो दैट जितना अच्छा है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं. नाउ द मोबाइल टेक्नोलॉजीज. सो मोबाइल टेक्नोलॉजीज मतलब थैंक्स टू द मोबाइल टेक्नोलॉजी दैट अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज़ की, अर्बन एरियाज़ की, एज वेल एज हमारे रूरल एरियाज़ में भी मोबाइल सर्विसेज अवेलेबल हैं. सो द मोस्ट oldest and famous mobile technology is the SMS, that is the short message service, जहाँ पे आपको मिनिमम 160 कैरेक्टर्स मैसेज का सपोर्ट मिलता था एंड आप अपनी बात को इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस कन्वे कर सकते थे. नाउअडे SMS की भी लिमिट बढ़ गई है, बट दिस इज एन आउटडेटेड सर्विस. नाउअडेज
ये सर्विस रेयरली यूज होती है। MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज मीन्स यहाँ पे आप not only the text, you can use images, videos, audios, any format you can use to convey। आप किसी भी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। 3G, G stands for the generation of the mobile, so 3G is the third generation। तो थर्ड जनरेशन में हमें क्या मिला? तो फर्स्ट जनरेशन वॉज द एनालॉग सेल फोन्स, सेकेंड जनरेशन वॉज द डिजिटल फोन्स। सेकेंड जनरेशन में भी हमें थोड़ा बहुत इंटरनेट एक्सेस मिला, बट थर्ड जनरेशन यहाँ पे हमको एनहांस स्पीड मिली, मीन्स द स्पीड दैट वाज ग्रेट, दैट वाज हायर इन कंपैरिजन टू द 2G। ओके, और एक अच्छी स्पीड हमें मिली। बट द 4G दैट वाज द फोर्थ जनरेशन, यहाँ पे हमें एनहांस्ड स्पीड, हमें 3G से भी बेहतर स्पीड, डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड मिली, सो दैट हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन थोड़ा और ज़्यादा फास्ट हो सके और ज़्यादा स्पीडी हो सके और हमारे टाइम बच सकें, हम चीज़ों को और जल्दी एक्सेस कर सकें। ओके, these were the mobile technologies, so that's it for today class। and by the way, by this topic we are finished our first unit, that is networking।